Is it started? Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Thank you again for your precious time you are giving to me and the students also. So, we are starting our spoken class. And if you will face any problem anytime, you can ask me. If you will ask as many as question, your problem will be solved and my problem will be also solved. So I request, I am using English language here, I will use Hindi also. But try at once that you should understand the English. So you can ask me anytime in between also. So the first part is, how can we learn English? The first, I am sure all of you are educated, maybe 12, 10, graduation, PG you have done. And you know all the things. But it's the matter that the confidence that we think that we cannot speak, we cannot write. This is why we not started generally. And we think that our friends and all the other colleagues will laugh if I will make error. So we don't need to care about that. We will learn definitely, we have to start. So first of all the word meaning we have to know. सब लोग को इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग जानना होता है और आप लोग को बहुत सारा वर्ड मीनिंग पहले से पता है. Generally you have heard the story of the god Hanuman, that he has forgotten his power by some default or some fault he had done. So one of our monk has given him punishment that you will forget your all the powers. This is what happening to ourselves also. We have also forgotten our power. So I will remind your powers that you are powerful and you will do it. I'm sure. After 1 minute, you will be able to make a sentence. So many sentences by your own. I promise that. So spoken, we can write and we can mention the tomorrow's date also. Somewhere you can mention the date also. Please note down. So first of all we have to know the words. So I'm sure all of you are educated and you have so many sentences, so many words you know, but it's a matter of confidence and after 1 minute you will be able to make a sentence. First of all let's know about the tense. Tense is very important and maybe all of you know about the tense. How many kinds of tense we have in general? How many kinds of tense we have? Anybody? Three. Sir, three. Yes, three. Three kinds of tense we have. Please note down it. Tense. Three kinds of tense we have. First is Present tense. present. Yes. So all of you are educated and all of you know so many things. I know that. Present tense, past tense, and the future tense. Please make this diagram. I know you already know that, but it is our duty to make it. Please make this diagram. Tense, present, past, future. One by one, we will define all that, and we will be making the sentences accordingly. Anytime you can ask any questions as well. If you are thinking that any words, any sentences are going beyond your head, just only you have to that time you have to ask. I request you all. Is it written by everybody? So in general, there are three kinds of tense we have: present tense, past tense, future tense. And these all three tenses also have the kinds. How many kinds of present tense we have? We will read the present tense first. So I am erasing this one. Please ask me, you have any question, any doubt. Tense. First we will read the present tense. Present tense. Yes.
So how many kinds of present tense we have? Anybody? How many? Yes? Yes, very good. What are those? The present indefinite tense, present continuous, present Let him tell. Yes. Present indefinite, present continuous, and yes, please at least try. It doesn't matter you are making error or not. It doesn't matter. Present perfect Present perfect continuous, yes, and present anybody, please. present continuous That is already told by Isaac. Present indefinite are simple. Just please let's note down. There are four kinds of tense we have. There are main kinds of three tense we have: present tense, past tense, and future tense. And all the three tenses have four kinds. First is present indefinite. Indefinite means the simple also. Yes. Okay. Present is first indefinite and we call it simple also. Present indefinite, present simple. Those are the same. And the present continuous, present perfect, present perfect continuous. And the past tense also have four kinds, the same kind. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. The future tense has also four kinds, the same kind. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. That's it. So we can note down here first indefinite. Indefinite in bracket we can write simple also. Present simple, present indefinite, that is the same word. The second one is continuous. Please take care of spellings. Third is perfect. And the fourth one is perfect continuous. So many words you already know. This is why I am not telling the meaning. But in between, if you are feeling, if you don't know any meaning of any word, you can ask me anytime. You can note down on your copy. I will be happy if you will ask the questions continuously. As many as questions you will ask, I will be more happy. So please participate, please ask the questions. Have you written everyone this one? Till now, I am explaining in Hindi. Yes. कंटिन्यूअस के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yeah, I will define it. Everything I will define. Just I am telling the kinds of things right now. I will define everything. इंग्लिश हो गया और हिंदी में बोलो। टेंस जनरली आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। Yes. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सेम काइंड। इंडेफिनिट या फिर सिंपल बोल सकते हैं, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, 4 प्रकार के सेम होते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक-एक टेंस को देखेंगे। एक-एक टेंस को पहले छोटा टेंस को बनाएंगे रूल पहले हम लोग लिखते हैं। ये लिख लिया हम लोग? ठीक, अभी मैं इसको मिटाता हूँ। तो मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा और प्लीज आप लोग पूछ लिया कीजिए। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट वी यूज द प्रेजेंट टेंस एंड वी यूज द मिनिमम रूल। तो सो प्लीज राइट प्रेजेंट indefinite. As simple you can write. You can write in bracket simple if you want. Otherwise, if you are not writing, then also it's okay. If you understand, indefinite spelling is wrong. Please let me know if I will make any mistake. Immediately you have to tell me. First, we need the rule. What is the rule? Can anybody tell me what is the rule of present indefinite? Yes. What is the rule? Please let me know.
want, whatever you want to say, just say it. It doesn't matter it is wrong or right. Please say it. Very ऐसे good. ही ऐसा ऐसा and I- simple Your every word is precious to me. Every word. Your every word is like gold to me. So just don't hesitate. Please say. Yes. What are those? What are the rules? सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का Yes. Good. So there are rules. Those are we will be using, but there are sequence. So first of all we have the subject. Do you know what are the subjects? सब्जेक्ट ऐसे कुछ सामान रहता है Yes. What are the subjects, sir? Anybody? Please. What are the subjects? Please note down. For rule, we have to know the subject first. What are the subjects? Please note down, and I know you already know about these words. Have you heard? There are two groups of subjects. There are two groups. So first group we have I. Have you heard about I? I am safe. I am Sadam. I am Nilesh. We say generally that. So I. Just note down it. Note down it. Rules. Make some blank spaces here so that we can write the rule and write this subject. Please write. I. सी B. Very good. And you. यू You and they. सिंगुलर है ना सर? Yes. इसमें सिंगुलर है ना? Yes. I, B, I, comma, we, comma, you, comma, they, comma, singular. Yes, singular it is. They and names. These are the first group. I will tell you what is the meaning of that group. This is the first group. I, we, you, they, names. What do we understand by names? सर क्वेश्चन सब्जेक्ट सब में यही लगेगा ना ऐसा है There are two groups. This is the first group. I will tell you the second group also. And I will tell you the importance of the group. That first group will be using by some सर words. हिंदी में बता दीजिए I will tell you. First of all, let me finish in English so that you will be able to hear the English words and sentences. I will explain all those in Hindi also after that. Definitely. But don't wait, please. Have you written everyone? वन सेकंड Please note down it. And this should be written permanently somewhere so that you can see if you need in future also. How many of you from English medium school? Sir and ma'am, how many of you? No? No. So we are just friends. The same batch we are. That's good. And if I can speak, I can teach, then also you can also. I believe that. So, Nisam, have you written all this? Have you written all these? समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा हूँ? No problem. We will be able to speak. आप केवल 10 से 15 क्लास अटेंड कीजिए. यकीन से बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे जैसे बोलने लगेंगे. अब बस उसमें काम कीजिएगा थोड़ा सा. सारा चीज़ आपको पता है. बजरंगबली जैसा आप लोग के ज्ञानी है, बस बताने की जरूरत है. आप एक छलांग में लंका तक जा सकते हैं. मतलब जा ही सकते हैं और चल ही जाता है कि नहीं? तो पावर आता है तभी बताते हैं. मैं आपको बोल रहा हूँ कर सकते हैं, मतलब आप में पावर है. मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली. आप भी देख पाएंगे थोड़ी देर बाद. Have you noted down everyone? Listen to the right. Yes, sir. So there are two groups of subjects we have. In the first group we have I, we, you, they, names. What do we understand? What is the meaning of I? मैं We, हम वाह। हम वाह we. वाह हम आप जिसको आप नहीं जानते हैं प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि किसको क्या पता है मुझे नहीं पता. आपको जो नहीं पता है वो आपको लिखना है, आपको याद करना है. याद नहीं, प्रैक्टिस में लाएंगे और सीख जाएंगे. याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हो चुके, विद्वान बन चुके हैं हम लोग. तो हमको
नेम्स, नाम नाम मतलब कितने नाम, बहुत सारे। एक से ज़्यादा। देखिए जनरली इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, हिंदी में तीन होते हैं। तो यहाँ पर नेम्स का मतलब ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का बहुवचन। जिसको नहीं आता है प्लीज नोट डाउन करके चलिए, ठीक है। वैसे ये वीडियोस यूट्यूब में डलेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी मैं जितना भी बोला हूँ उसके हिंदी बता देता हूँ। हमको सबसे पहले चाहिए होता है कुछ वर्ड्स जो हम लोग को सबसे पहले पता है, उसके बाद रूल होता है, रूल को मैं बताऊंगा। रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप हमारा ये है और ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है ये भी मैं बताऊंगा। ग्रुप एक जनरली यूज होता है, जैसे एडमिन ग्रुप हो गया, टीचर ग्रुप, दोनों का काम अलग है। अब कोई बाहर से आदमी पूछेगा कि ग्रुप क्यों बना रहे हो, दोनों का काम अलग है, इसीलिए मैं ये ग्रुप बता रहा हूँ, दोनों का काम अलग अलग होता है। तो in the second group, what do we have? What do we have in second group? There are only two groups. First group we have already written I, E, U, they names. And second? there No, not there. That is an adjective actually. I will tell you about part of speech also, where you will learn, we will learn noun, pronoun, adjective, verb, noun. So anybody guess? Please guess. It doesn't matter. We are wrong or right. It doesn't matter. Your every word, every thought is very precious to you. why Don't worry about that. Yes, please say it continuously. What are those? He, she. He, she. Yes, that's it. it He. Very good. see He, she, has it. It. And is it and? Yes? sir has Name. Name. There is names, means multiple names. There is name is single name. Yes. So please note down it. You already know that, sir? Is it? Oh, no problem. If you already know that, you don't need to write it. If you want to write it, that will be very good. He means see. why होता है? Everybody? वाह, गर्ल्स के लिए इस्तेमाल। वाह, लेकिन नहीं, ये वो जो है ना, स्त्रीलिंग हो रहा है। हाँ, yes. he मतलब भी हुआ, see मतलब भी हुआ। he जो है मेल कैरेक्टर के लिए, हाँ, फीमेल के लिए, हाँ मतलब मर्द के लिए ये होता है, लड़की के लिए। ठीक। it आदि मतलब कॉमन। कामन मतलब सभी के हाँ लिए। एक लिए हाँ। और कोई दूसरा कोई बताना चाहेगा? Anybody? यह इत्यादि होता है सर। यहाँ नहीं यहाँ एक मतलब यह होता है हाँ, यह। और इसका मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे इट इज ए डॉग, उसको ही इज ए डॉग नहीं बोलते हैं, जानवर हो गया ना। हाँ, जानवरों को या निर्जीव चीजों को इट बोलते हैं। नेम मतलब एक नाम, कोई भी नीलेश हो सकता है, अमर हो सकता है, शारदा, संगीता, कोई भी मेरा भी कोई भी हो सकता है। हाँ, तो इट बोलेंगे तो निर्जीव हो जाएगा। एक अच्छी बात है। ही मतलब जैसे मेल के लिए यूज करना ही अमर। हाँ, he is अमर। सी निशा। हाँ, he is निशा। Yes, बस यही है। अब it is there, बस। He is मोबाइल नहीं बोलेंगे। It is मोबाइल। It is। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप लोगों को बहुत से पहले से पता है। माहौल यही रखेंगे, सिखा रहा है इसका मतलब नहीं कि ठोक रहा हूँ मैं। है ना? इस मजाक में सीखेंगे ज़्यादा अच्छा से है ना? ठीक है, वेरी गुड। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब रूल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लगाएंगे, कोई भी आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, कोई भी लगा सकते हैं। मैं आई लिख देता हूँ। सब्जेक्ट सबसे पहले रूल होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट लगाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो आप एक भी कोई भी लगा लीजिए अपने हिसाब से, या हम लोग कॉमन लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? प्लस इसके साथ में कुछ रहता है, सब्जी जैसे बनाते हैं तो मिर्च, हल्दी मिर्च सब रहता है, और हाँ, और वो एक सीक्वेंस में रहता है। वर्ड का फर्स्ट नहीं क्या रहेगा? ऐसे वर्ड का फर्स्ट
बाद में भी लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। इसको हम बाद में बार-बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वन रहेगा मतलब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड रहेगा सेकंड फॉर्म, थर्ड रहेगा थर्ड फॉर्म। फोर्थ भी होता है लेकिन उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ में आईएनजी रहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया ये, इसको आई ना लिख के मेरे को सब्जेक्ट लिखना चाहिए है। मुझे तुरंत बताया कि प्लीज, चूक होता है मेरे से भी, मैं क्योंकि आप लोग से ज़्यादा ही गलती करता हूँ मैं, तो प्लीज बता दीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका हो जाएगा काम। कितना सिंपल है। हम अभी 10 बना लीजिएगा। देखिए एक बताइए, कोई भी अपने पास एक सब्जेक्ट बताइए जो सबसे अच्छा लग रहा हो बनाने से, एक बात आप चुन सकते हैं। पहले फर्स्ट ग्रुप से देखते हैं, सेकंड ग्रुप में थोड़ा सा लोचा रहता है, तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप में पहले देखते हैं, सिंपल रहता है पहला वाला, इसमें थोड़ा सा पंचायती रहता है। तो एक सब्जेक्ट कोई भी बताइए। अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, बना रहे हैं हम लोग सेंटेंस, ठीक है। आप लोग देखिएगा, अभी बना लीजिएगा। तो ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल में जो फर्स्ट रूल है, हाँ, तो इसमें मतलब कोई रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहते हो। हाँ हाँ, ES रहता है। हाँ ES तो रहता है सब रहेगा ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, वो लेटा हुआ है, वो सांस लेना सीख रहा है, हम लोग भी सांस लेना सीख रहे हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एकदम जड़ से हम लोग शुरुआत करें, जीरो से। आप एकदम बच्चा है, उसको सांस लेना नहीं आ रहा है अभी, तो सांस लेना वो सीख जाएगा अपने, ठीक है। उसके बाद में बच्चा जो है थोड़ा सा हिलना सीखता है, मुंडी को भी नहीं खिसका सकता हो, तो हम लोग वही पोजीशन में मान सकते हैं अभी, हालांकि इसमें नहीं है, धीरे जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक सब्जेक्ट ले लीजिए कोई भी, आई, यस। वर्ब को लिखना चाहेंगे लिख लीजिए आप लोग। वर्ब होता क्या है? क्रिया। हाँ, क्रिया, काम। किसी को नहीं पता था? सबको पता है, ठीक है। जैसे कि क्या काम? एक काम बताइए। मार्केट जाना है। आज स्पोकन इंग्लिश एक काम बताइए। ऐसा हो सकता है। हाँ, काम मतलब कुछ भी, जैसे जाना, एक काम, एक काम बताना है, सेंटेंस नहीं, एक काम। जाना हो गया, और लिखना, पढ़ना, लिखना, रीडिंग, रीड, राइटिंग, राइट, राइट बोलेंगे, टॉकिंग, टॉक, लर्न, लर्न, ये सब काम है जो भी करते हैं, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा जो भी है, सब काम पढ़ने लिखना। तो वर्ब मतलब क्रिया, काम। हाँ, एक एग्जांपल हम लोग जैसे लिख सकते हैं, क्या लिखूं मैं एग्जांपल के लिए? रीड, वर्क, ईट, ये एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं, बस ये हमारे समझ में। ईट, एटसेट्रा लिख देता हूँ। ईटीसी का मतलब एटसेट्रा होता है, आपको पता होगा, शॉर्ट फॉर्म होता है ईटीसी का, एटसेट्रा। तो ये वर्ब है सर, ठीक है। अब एक वर्ब हमको लगाना है केवल, कितना सरल है देखिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब में हमारा काम खत्म। कितना सारा सेंटेंस बनाना है अभी आपको। सब्जेक्ट लिख लिए, प्लस को मैंने साइन को सामने लगाना है, तो मैंने लिखा था। सो व्हाट आई शुड राइट हियर? एनी वर्ब, प्लीज लेट मी नो। रीड। इसका क्या मीनिंग समझा? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, और कोई नहीं भी को है। आप बताइए, पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहा हूँ बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं साहब? कि कुछ नहीं बोल रही हैं? पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यस। इसका मतलब हाँ, तातीते लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ताते ती। ये जहाँ भी दिखाई दे तो हमको समझ जाना है, इसको लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब में हमको लिखना पड़ेगा। हाँ, मैं खाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जाता हूँ, झगड़ा करता हूँ, कुछ भी है, सब चीज। जहाँ पर दिखे ते या ती मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका रोल होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोग अपने हिसाब से सेंटेंस बनाइए इस रूल को फॉलो करते हुए। अलग ये फर्स्ट ग्रुप को यूज करते हुए केवल आई, वी, यू, दे, नेम्स। उसके बाद इसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहले इसी को बना लेंगे। एक सब्जेक्ट अलग अलग बनाइएगा, अलग अलग वर्ब के साथ
अलग अलग, ये पहले वाले ग्रुप के साथ ही बनाइएगा, पहला वाला ग्रुप। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो पहला वाला ग्रुप के साथ आप बनाइए। चलिए अलग अलग बनाइए। एक सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आता पूछ लेंगे, एक दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब पहला हाँ। सब्जेक्ट है तो सबका एक सेंटेंस बनाना है। हाँ एक सेंटेंस बना लीजिए। सुनिए ना, देखिए अभी हमने आई का बना लिया ना, अभी आप लोग वी का बना लीजिए एक सेंटेंस या कोई यू का। ऐसा एक बनाइए, केवल एक बना के मुझे दिखाइए और कुछ पूछना होगा तो पूछिए। ओनली डीट का बनाना है सर कि कुछ भी और डाल सकते हैं? पहला वाला ग्रुप का बस यूज करके वी का यूज कर सकते वर्ड हैं नंबर और ये सेम टू सेम रीड करके बनाना है, अलग बनाइए कुछ। हाँ वही कुछ अलग बनाइए, अलग वर्ब अलग उसमें सब्जेक्ट में बनाइए। बना लिया? जिसको बनाने का मुझे बताएंगे, मैं चेक करूंगा। यस, हैव यू मेड इट? यस, आई साइन, वेरी गुड। सिंग, यस। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? हाँ, आई का हमने बना लिया ना। रूल क्या बोलता है? एक सब्जेक्ट लगाना है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एक बनाइए, कोई भी दूसरा। और आप चाहे तो और बना सकते हैं या अगर लिखना नहीं चाहें तो ऐसे मान लीजिए आप ला सकते हैं, बता सकते हैं बाद में, है ना? ऐसे जैसे नेम तो प्लूरल है, हाँ है ना? हाँ, उसमें सर एस लगा दूंगा, ऐसा अमर ऐसा हो जाएगा, अमर के लिखना होगा। नहीं सर, वो एक से ज्यादा नाम रहेगा, जैसे अमर एंड अच्छा, तो अमर एक से ज्यादा नाम रहेगा। हाँ, एस नहीं लगाना है, एक से ज्यादा नाम रहेगा उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं। बनाइए प्लीज, हो गया आप बना लिए? कौन सा बनाया? हाँ, very good। ये रहेगा। हाँ, आप बनाइए चलिए। आप जितना भी बनाइए, एक तो पहले बना के बताइए ना मुझे। एक सब्जेक्ट रखिए, एक वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखिए कैसे। सुनिए ना मैम, आप अपने हिसाब से बनाइए, करना सीखिए। हाँ, क्या बनाया है? ऐसे, ठीक है, ठीक है, सही है एकदम, सही है एकदम ठीक है। और दूसरा बना सकते हैं, आई वाला हो गया, वी से कुछ बना सकते हैं, उससे सबसे बना के बताइए। देखिए मेरे को, यू दे नेम्स, और वर्ब को भी चेंज कीजिएगा। प्लीज चेंज द वर्ब आल्सो, प्लीज लेट मी नो। हैव यू मेड एनी? एक बनाइए ना बेटा, कितना टाइम लग रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं हम जब बातों को, ना पूछ नहीं रहे हैं। देखिए मेरा ये ठेका है क्या कि मैं आप लोग से पूछूंगा जा जाके। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि आप लोग पूछिए मेरे से। आपका हर बात मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ। आपको 10 बार पूछना चाहिए था, सर ये बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताइए। अब मैं आपसे पूछूंगा जाकर के, फिर आप मुझे बोलेंगे कि मेरे से नहीं बनता। तो ये तो मतलब हो गया कि सर आपने ठेका ले रखा सिखाने का, आप सिखाएंगे, ऐसा हो गया ना? हमसे मतलब नहीं है सर, आप हमको सिखाइए, हम नहीं कोशिश करेंगे। एक तो बता दिया ना, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है पता है, पहले ग्रुप से बनाना है। सब्जेक्ट पहला ग्रुप में क्या क्या है देख के बताइए ना। आई है और बस आई बस है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या है फट बता दीजिए देख के, बिना देख के बताइए, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? एक सब्जेक्ट रखिए, आई हो गया, कोई दूसरा सब्जेक्ट रखिए, लिखिए सर, लिखिए ना तो। हाँ हाँ, ये हम जब भी सेंटेंस लिखेंगे तो पहला लेटर होता है कैपिटल, उसके बाद में होता है। सूरज सर आप अपने से बनाइए, है ना? क्या बनाए चलिए बताइए, एक तो बताइए क्या बनाए हैं आप? आप कहाँ से आ गए ये? देखो देख के बनाओ ना। सब्जेक्ट कौन कौन सा पहले ग्रुप में ये बताइए। इतना ही रखना है, एक सब्जेक्ट रखिए, कोई सा भी रखिए। सर क्या रखे हैं आप? पहला सब्जेक्ट आई, वेरी गुड, आई वाला हो गया, कोई दूसरा रख लीजिए सर। हाँ, बाकी लोग से कोई हमको दुश्मनी नहीं है, बाकी लोग का भी यूज कर रहे हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है बस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इससे सरल क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म जानते हैं ना, जैसे गो, वेंट, गॉन। गो
फर्स्ट फॉर्म, वेंट Second सेकंड फॉर्म, form. थर्ड। वैसे जब इन जनरल होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहते हैं, लेकिन जनरली ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ड तीनों फॉर्म में होगा और तीनों वर्ड अलग अलग हो फॉर्म में, ये भी होता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो हमको उसको याद करना होता है। आप लोग को पता है, धीरे धीरे आप लोग बजरंगबली जैसे महसूस करेंगे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा अरे मेरे को तो आता है, फालतू में वो सर बता रहे थे, मेरे को पहले से आता था, हो जाएगा उनकी बात में। एक सब्जेक्ट लिखे, आई लिव, यस मैं जीती हूँ, वेरी गुड। और कुछ भाग में क्या बताएं आप ऐसे बनाइए, बोल के बताइएगा क्या बनाए हैं। We live. वी लिव, यस। आप क्या बनाए, शब्द में कुछ बनाई हैं। We play. वी प्ले, वेरी गुड सर। वी कम। वी कम, हम आते हैं, वेरी गुड सर हम राइटिंग ऐसा करते हैं। देखिए थर्ड We फॉर्म write. अभी सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आगे जाना ही नहीं है। अभी हम केवल पैदा हुए सांस लेना सीख रहे हैं, बाद में हम मुंडी इधर उधर करेंगे, चलेंगे दौड़ेंगे सब करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं तो हमको आगे नहीं जाना है, जितना है उतना हमें पहले करना है। सब्जेक्ट बाद में तो मतलब क्या होता है, सिर उड़ाएंगे। ऐसे हाँ दे प्ले सब्जेक्ट अभी इससे सिंपल स्टेप क्यों, इसमें कोई आर्टिकल कोई एडजेक्टिव कुछ नहीं रखा हुआ है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, खत्म। हाँ एक बताइए, एक सब्जेक्ट बताइए, आई को छोड़ दीजिए, दूसरा क्या बचा हमारे पास, दे दे प्ले, यस दैट्स इट, यस सर। आप कुछ बनाया बताइए। हमारे नीले ड्रिंक लिख दिया। ड्रिंक, वेरी गुड। नहीं पानी पीते हैं आप, नहीं बोल रहे हो, पानी के बारे में बात कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और उनका इरादा नहीं ठीक है निशा We का पता नहीं कि you का कुछ कुछ बताइए आप क्या We बनाए। play with you. We You play. eat with you. You make it with यू eat. यू ड्रिंक ईट, ओके सॉरी ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं जनरल होता क्या है, इसको हम लोग बना लिए। अभी मैं खाती हूँ पीती हूँ चलती हूँ ये वो दुनिया भर का, इसको बना ही लेंगे। अब इससे प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग वर्ग के साथ में, जो मीनिंग नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, घर पे जाकर मैं बताऊँगा, यहाँ बता नहीं सकता हूँ। और आपके पास मोबाइल है, सारा चीज़ उसमें है, डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो एक एक स्टेप चलिएगा, बहुत स्पीड में भागने के चक्कर में किसी की चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का मतलब अब समझ में आएगा कि मैंने ग्रुप में क्यों रखा है, चाहता तो एक साथ रख सकता था, अलग अलग रखने का क्या फायदा है। हम सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखे, पहले ग्रुप के लिए लागू होता है, सेकंड ग्रुप के लिए वो लागू नहीं होता है, ठीक है। यस सर क्या अंतर रहता है, क्या अंतर रहता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब लगता है। और कोई सजेशन, एनीथिंग, एनीबॉडी प्लीज सजेस्ट समथिंग। एस या फिर ईएस जुड़ता है, ये दोनों में अंतर है, आपको पता होगा, धीरे धीरे याद आता जाए। बोल रहा हूँ उसको जैसे जैसे बताते हैं ना बजरंगबली को, अरे ऐसा घूमते जाता है मतलब, ये तो हाँ मेरे पास ताकत है, मैं ढाक दे दूँगा पहाड़ में, ऐसा शुरू होगा कि पहाड़ में कैसे फेंक दूँगा ऐसा। तो अब आप लोग को लगते जाएगा हाँ ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है, सब पता है आपको, बस याद दिलाने की जरूरत है। तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं ये जी Yes. and now it will be better if you will speak the English as many times as you can. Example, yes. Now we don't need the subject, we already know that. So in the second group there are he and one verb please, verb, first form of verb. ही प्ले Play. So when we use the first form, means first group, we just say play. लेकिन जब सेकंड ग्रुप की बारी आती है, प्लेस हो जाना है। ये दोनों में अंतर था, इसलिए मैं उसको ग्रुप में बनाया। अब यहाँ पर एस और एस दोनों होता है, अलग अलग वर्ब के अकॉर्डिंग, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, वो सभी आपको पता है। धीरे धीरे आप लोग को लगेगा कि हाँ मेरे को पता है, और वो आपको सही में पता है। He plays, ये ग्रुप है। हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेकंड ग्रुप हम जब भी यूज करेंगे एस या फिर ईएस जुड़ेगा। सी प्लेस, इट प्लेस, सरदमन प्लेस, संगीता मैम प्लेस, नीलेश प्लेस, नीलेश सर प्लेस, ठीक है।
अभी आप बनाइए क्या क्या होता है सेकंड ग्रुप में, सबको पता है, पता चल गया क्या क्या होता है मैम? व्हाट आर द सेकंड ग्रुप सब्जेक्ट्स? he, हाँ she, हाँ they, दे सर next, नेम next, she, they, आप लिखे ना ग्रुप को, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा हाँ? और बिना इसको देखे बोल रही हाँ नहीं नहीं ठीक है। आई वी यू द नेम्स होता है, ही सी इट नेम, ऐसे याद कीजिएगा, तोता जैसा रट डालिए इसको। आई वी यू द नेम्स, ही सी इट नेम, ऐसे करके 1-2000 बार सेकंड ग्रुप में एक ही नाम रहेगा सर। ही सी इट नेम, हाँ सिंगुलर नंबर रहेगा उसमें, एक नाम, एक नाम होने की वजह से एस या फिर एस जुड़ता है, और जहाँ एक से ज़्यादा नाम रहेंगे एस या फिर एस नहीं जुड़ेगा, इसीलिए वो फर्स्ट ग्रुप में था। ठीक, अभी बनाइए आप अपने अपने मन से सेंटेंस बनाइए सेकंड ग्रुप में यूज करके, अलग वर्ब का ऐसे ही बनाना है सर। हाँ बनाए तो वैसे रूल बनाए ना, वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के सेकंड ग्रुप के साथ में एस या फिर एस जुड़ता है और फर्स्ट ग्रुप में नहीं जुड़ता है, अंतर इतना ही है बस। बाकी रूल यही रहता है, सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट नाम रहेगा। यस ये किसके साथ जुड़ेगा? हाँ, अलग अलग वर्ब के साथ में जुड़ता है। जब आप वर्ड्स को देखते जाएंगे ना तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा किसमें जुड़ेगा। आप जैसे कोई भी एक आप सब्जेक्ट बताइए जिसको आप बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, जैसे राइट, हाँ राइट्स हो, राइट, हाँ राइट का स्पेलिंग WRIT होता है, तो एस जुड़ जाएगा उसमें। गो में भी वैसे है। गो में ई एस जुड़ेगा सर। हाँ गो में गोज होता है, आपने देखा ही होगा। हाँ गोज, एक बना लीजिए, ज़्यादा बनाएंगे तो। आप देखिए नीलेश सर, आपको बोर्ड देखना है, अपना कॉपी देखना है और मेरे को देखना है, और तीसरा आपको नज़र नहीं आना चाहिए कोई, या सभी को वही हाल है कि आप मैं देखूँ बोर्ड दिखे अपना कॉपी दिखे बस, और मान के चलते हैं कि बाकी लोग नहीं हैं, दे आर इनविजिबल, दे आर मिस्टर एंड मिसेस इंडियास। Please make a one sentence using the second group of subjects. What are the second group of subjects we have? सी, Neeraj sir, यस सर। what are the second groups of subjects we have? यू रन सर। सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट था ना, क्या क्या सब्जेक्ट था उसमें, क्या क्या शब्द थे? उसका था सर सी, ही और इट, नेम। ही सी इट, ऐसा सीक्वेंस में रहता है। यस सर। पहले तो बोलेंगे तो ठीक है। यस सर। एक लिखिए, सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट लिखिए। सी रन ऐसा क्या वो कैसे? हाँ सी रन, ठीक है। बनाइए शुरू से। सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट क्या होता है, एक कोई बताइए। अभी आपको याद नहीं है ना तो इसको देख कर भी बता लीजिएगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। उतना छोटा सा तो हम याद कर ही सकते हैं ना, आई वी यूज द नेम्स, इसी इट नेम, कितना सर हो गया। मतलब हम लोग इतने बड़े हैं कि हम लोग को दो लाइन याद करने में लग सकते हैं। देखिए आई अभी कहीं पर भी नहीं है, हमको एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना है, जितना हमारे पास है अभी उतना ही बारे में सोचना है। हम मान के चल रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता, बस यही आता है। वर्ब के साथ में एस या फिर एस जुड़ता है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या एस जुड़ता है, और अलग से हमको आगे सोचना ही नहीं कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना ही आता है। सर हो गया। क्या बनाए समझिए। सी गोस, इट सी गोस, गोज, सी गोज, ही गोस, ही गोज, ही का बना दिए थे ठीक है। तो सी, ही का नहीं बनाएंगे। नहीं देखिए एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप जो जो बनाए हैं वो बता दीजिए, पता है। इट फोन्स, इट फोन्स, फोन्स, ठीक है। सर राधा कुकू, सी वर्क्स, ही प्लेस, इट्स टेबल्स। इट नहीं, टेबल जो है ये वर्ब नहीं है, काम नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वो हमको काम बोलना है, टेबल काम नहीं होता है। तो वस्तु भी इट, वस्तु भी आता है। हाँ तो काम को हमको लिखना है ना, ये टेबल काम नहीं है, बाकी ठीक है। ये क्या ड्रिंक्स, ये भी ठीक है, सर वेरी गुड। राधा फेंक, राधा बुक, राधा बुक्स, यस। ये सी, सी, बुक जो है वो काम थोड़ी है जी, वो पुस्तक है, वो तो ऑब्जेक्ट है, नाउन है। काम को हमको लिखना है, खाना पीना, पढ़ाई करना, लिखाई करना, चलना दौड़ना, भागना खेलना, ये सब काम होता है। यस सर। जिसमें ना आता है वो काम होता है, सीधा बात है ना, उसको पहचान होता है। ठीक, यस सर। तो चलिए ये दोनों हो गए, आगे बढ़ेंगे, किसी को प्रैक्टिस करेंगे कि क्या करें बताइए।
आगे बढ़े, इतना काफी में ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा क्योंकि हम लोग इतने बड़े हैं कि इतना छोटा सा है। फिर मैं देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रिवाइज करूँगा। आज हाँ जी। मैं प्रेजेंट को पूरा कर ली पूरा हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दो कर कंटिन्यूअस से कंप्लीट कर दीजिए सर, कंटिन्यूअस तक दो तो कर ही सकते हैं। हाँ कंटिन्यू इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट हो गया, इतना ही है। कंटिन्यूअस कर दो। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस भी छोटा सा ही है, हाँ। इसके जैसे ज़्यादा पंचायती नहीं है। कंटिन्यूअस हाँ, बस फिर अगले बार से हम क्या करेंगे, अगले बार से बिना देखे आप लोग को याद करके कम से कम आना होगा, जी जी, जी है ना। प्रैक्टिस करके मैं पूछूंगा सिर्फ, तो जी। रिवाइज बस करेंगे उसका जाने पड़ेगा। जी और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नुकसान होना नहीं है, नुकसान होगा तो सुनना पड़ेगा बात, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर कंटिन्यूअस। मे आई रेज दिस वन? यस So let's move further towards the continuous tense. Present continuous. Please note down it. Please take care of the spellings. Please write with focus. There are chances of making errors while writing the spelling correctly. Present continuous. What do we need first? For the present tense, जो काम चल रहा है rule. We have to know the rule first. Yes. So, what is the rule? Please let me know anyone. द्विपास है शायद। आईएनजी ING. Very good. Yes. वर्ब का थर्ड फॉर्म Third form of verb and सब्जेक्ट subject. Subject सब्जेक्ट Was वर्ब का थर्ड was where? Third form of verb. Any suggestions? इतना ही रहता है सर। ING was the best one. There will be ING, but ING शायद परफेक्ट ही मिला। subject plus परफेक्ट ही मिला। subject plus वर्ब का वास वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है या सेकंड फॉर्म रहता है शायद। helping verb. You can note down here helping verb. Helping verb. हेल्पिंग को हम लोग ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है। मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलूं या हेल्पिंग वर्ब बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, तो भी आप लोग को समझना है कि हाँ ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। मैं कभी ऑक्सिलरी वर्ब बोल दूंगा, कभी हेल्पिंग वर्ब बोल दूंगा, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, दोनों एक ही चीज है। वैसे ये भी है, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब आर द सेम। ये सब को प्लीज एक जगह नोट करते जाइए, जीवन भर काम आने वाला है। इसमें भी ऐसा नहीं है जो आपको काम नहीं आएगा, हमेशा काम आएगा। एक जगह नोट करके इंपॉर्टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब भी। अभी मैं केवल भी बस लिखूंगा, अब उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने लिख दिया है, भी का मतलब वर्ब होता है, फिर से मैं बात नहीं लिखूंगा। First form of verb. I am writing here V1 means it is the first form of verb. Plus ing. Very good. Please note down it. Now you know the subject, you know the verb. Do you know the helping verb or auxiliary verb? What are those? Helping verb or auxiliary verb? What are those? Please let me know. Anyone? Any guesses? Your every word is very precious to me. Please say whatever you want. It's your freedom. Please say it. It doesn't matter you are making error or not. Just say it. What are the helping verbs? सहायक क्रिया होती है। हाँ, सहायक क्रिया। वेरी गुड। हेल्प मतलब मदद करना, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब का सहायता करता है। जैसे हम लोग सहायता करने के लिए हैं सर लोग का, हम लोग भी हेल्पिंग हैंड्स हैं। तो
हेल्पिंग वर्ब्स is, क्या क्या यूज करते हैं? is, am, are, यहाँ पर आप लोग यूज कर लिख लीजिए इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर यूज करते हैं। ये रहता है हेल्पिंग वर्ब्स। इज, am, are. एम, आर। प्लीज नोट डाउन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ यही 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी और दूसरा कोई नहीं। ये 3 ही यूज होने हैं। प्लस वर्ब यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द वर्ब? वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब क्या क्रिया? कुछ भी काम करते हैं। हाँ, काम, जैसे कि खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब काम। ठीक है, तो अभी हम लोग रूल पता हो गया हमको। अब सेंटेंस आप बनाएंगे। प्लीज मेक वन सेंटेंस प्लीज। Make one sentence and let me know what you have made. Make one sentence. You have the rule. I have written this. Please use this rule and make a sentence. If you want to ask any question, you can ask. You are most welcome every time. सर इसका मतलब बता सकते हैं? Is means है। है। जो जो नहीं पता है आप लोग लिख लीजिए प्लीज। हाँ, इस मतलब होता है एम, हूँ, है, हो, तीनों मतलब होता है इसका। हूँ, है, हो, अलग अलग जगह में अलग अलग। इंग्लिश ऐसा जो लैंग्वेज है इसमें एक ही वर्ड का, एक ही मीनिंग का, या मतलब एक ही स्पेलिंग का मीनिंग बदल जाता है सेंटेंस में। वो हम आगे देखते जाएंगे। एम, हूँ, है, हो, ये सब होता है उसका। आर मतलब भी है होता है। हूँ, है, हो, उसका मतलब भी होगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो अभी हमको रूल पता है, हम सेंटेंस बना सकते हैं। यू नो द रूल, दिस इज द रूल। पुट वन सब्जेक्ट, पुट वन हेल्पिंग वर्ब, पुट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी and the sentence will be completed. Yes, please make it. Have you made? Yes, sir. Okay. Yes, what you have answered? She is going. We are playing. Yes, she is going, we are playing. Very good, सर very good. Yes, एक ही करना है। yeah, just make one and let me know. I am going to have. Yes, very good. You have add the subject object also, No, हाँ। means the place also. That's it. That very good. But if you not add that one, that will be also okay. It's very good. You have made the conjunction also here, and the place also noun. You have made it. That's okay. If you can make it, that is very good. Yes. What you have made? हाँ, तो हमको रूल पता हो गया है। तो रूल क्या है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का? क्या है रूल? बोर्ड में देखिए ना, आप तो लिखे नहीं होंगे। ये तो लिखे हैं। हाँ 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 हाँ, तो चलिए एक सेंटेंस बनाइए उससे। शारदा मैम का राइटिंग बहुत अच्छा होता है, वैसे कोशिश करेंगे सब लोग क्लियर लिखें। आई एम लिसनिंग, ठीक है, बात ई रहता है। हमको इस स्पेलिंग पे ध्यान देना है। जहाँ जहाँ लगता है कि हमको डाउट हो रहा है, हम देख सकते हैं मोबाइल से। आप पूछ सकते हैं दूसरों से, मेरे से भी या किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। क्या बनाए हैं? यस, वेरी गुड। आई एम सिंगिंग। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब, और सिंग आपका वर्ब हो गया प्लस आईएनजी। ठीक है, सबने क्या क्या बना? आपने कुछ बनाया? हाँ, They are playing the कुछ बनाया? आई एम लिसनिंग। यस, वेरी गुड, मैं सुन रहा हूँ। यस, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, We are going. यू आर गोइंग। यस, They are eating. दे आर रीडिंग। Playing. यस, She is watching. यस, ऐसा होता है। एक क्वेश्चन तो 10 बताओ, ताकि
लोग 10 बोल के ना पूरा मतलब गोली जैसा चला दीजिए पूरा। क्या एक गोली मारेंगे हम 10 मारेंगे हम वैसे, तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। I am going to marry. हाँ, और I am singing. एम किधर है? नहीं, आई एम सिंगिंग, अब आई बस, बाकी लोग से बाकी भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक आई से भी मतलब इतना लगाव क्यों है मेरा करने के लिए? बाकियों को से भी होना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग भी हैं। ठीक है, वेरी गुड। हम लोग कैलोरी स्टार्ट किए थे 12:40 होने में तो 45। एक आप और जाना चाहेंगे आप लोग कि हो गया? चलिए, क्या बोल रहे हैं? इतना ठीक है, 2 ठीक है मेरे ख्याल से। Okay, please note down it and we will be completing our today's class. वो बता दीजिए कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा गाइड करते जाएंगे आप लोग, है ना? जनरली इज जो होता है और एम जो होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, इज सिंगुलर लिख लीजिए, इज एम, ये सिंगुलर के लिए होता है। प्लूरल के लिए होता है हमारा आर। वेरी गुड सर, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं जहां भी मैं चूक हूं ना वहां पर आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि बोलते बोलते बहुत सारी चीजें चूक जानी होती हैं। तो यहाँ पर आर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सब लोग समझते हैं कि किसी को नहीं पता है, नहीं पता तो फट से बोल दिया कि सर नहीं पता है। हाँ बोल देंगे तो दिक्कत आप लोग को होने वाला है। पता है सबको? बोलो सर पता है सिंगुलर नंबर प्लूरल, क्यों नहीं बोले आप? मुझे नहीं पता है। मतलब देखिए मैं एक तरह से ठेका लेके चल रहा हूँ जैसा लग रहा है मुझे। नहीं सर आप ही पूछेंगे, हम उसको बताएंगे। फट से बोल दीजिए मुझे नहीं पता है, क्या दिक्कत है? आपको पता है सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर क्या होता है? डाउट लगता है तो भी पूछना है भाई, मतलब मेरे बहुत दुख लग रहा है, मैं कम से कम 10-15 बार बोल चुका हूँ कि प्लीज पूछिए करके। आपको पता है? तो मैं जब आपसे पूछूंगा आप लोग सकता आप लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं पता है, अपने से हम लोग नहीं बोलेंगे, मतलब ये सपोर्ट नहीं हुआ, मतलब बोझ क्लास को ढोना हो गया। नहीं पता है फट से पूछे ना भाई, रोक दीजिए मुझे वहीं पर तुरंत, इमरजेंसी ब्रेक लगा कर ट्रेन को तोड़ दीजिए पूरा पानी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे मत बढ़िए। सिंगुलर नंबर होता है एक, जैसे मैं अकेला आप अकेले ही है। प्लूरल नंबर हम लोग एक साथ, एक से ज्यादा, दो ही होते हैं नंबर, मतलब दो ही होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इंग्लिश में, हिंदी में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें 2 ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। हाँ, अभी मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलेगा तो आप लोग को 5 बोलूँगा मैं कि भाई पूछिए करें। अगली बार से मैं वैसे करूँ, जाकर टच करूँगा कि पूछ लीजिए। 15 बार बोल चुका हूँ, अब आप भी पूछूंगा, ठीक है? अब मेरे को मत पूछना पड़े कि आपको पता है क्या है, ये तो ऐसे ही हो गया कि मतलब बोझ लेकर के चल रहा है। तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इमरजेंसी ब्रेक लगा दें। ठीक है? ठीक है, नाउ वी आर क्लोजिंग टुडेज क्लास। और आप लोग ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं मुझे घर जा करके कि ये पूछना है करके। हाँ, ग्रुप पे भेजेंगे, सबको पता रहेगा कि हाँ भाई घर में मेहनत किया जा रहा है। और अगली बार से कॉपी से नहीं देखेंगे, मैं अगली बार क्या क्या पूछूंगा, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या रूल्स हैं और सेंटेंस बनाने को बोलूँगा, कंटिन्यूअस में क्या क्या रूल्स हैं, सेंटेंस बनाने को बोलूँगा, बस फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।